السلام علیکم۔ نیو نیوز کی خصوصی رمضان کی نشریات پیغام رمضان، اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز۔ اور خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر عادل۔ میں ابتدا میں ایک افسوسناک خبر دینا چاہتا ہوں جس کا مجھے تو ذاتی طور پہ بے انتہا افسوس ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اس خبر کو سن کے خاص دکھ محسوس کریں گے۔ ہمارے ملک کی ایک بہت عمدہ اور شگفتہ اداکارہ تھیں جن کا نام تھا سنبل شاہد۔ میری تو بہنوں کی طرح تھیں، اور آپ شاید جانتے ہیں کہ ایک بہت مشہور صحافی اور ادیب جناب احمد بشیر کی یہ صاحبزادی تھیں۔ نیلم احمد بشیر اسماء عباس اور بشرا انصاری کی بہن تھیں۔ اب وہ آج ہم میں نہیں رہیں۔ سنبل نے بہت بہادری کے ساتھ پچھلے 15 دن سے کرونا کا مقابلہ کیا، مگر یہ بیماری اور وبا ایسی ہے، یا میرے مولا کی رضا ایسی ہے کہ اس کے آگے سر خم کرنا پڑتا ہے۔ میری صرف درخواست آپ سے اتنی ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، اور یہ بھی دعا کیجئے کہ ان کی اگلی منزلیں آسان ہوں، اور پسماندگان جو ان کی بیٹا اور بیٹی موجود ہیں، ان کے شوہر موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، ان کی والدہ زندہ ہیں، ان کو خدا تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ کتنے لوگ بچھڑ کے جا رہے ہیں، کتنے پیارے ہم سے دور جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج گھر سے دفتر آتے ہوئے مجھے جو حال بازاروں کا اور جس ٹریفک میں، آپ کو پتہ ہے بہت مشکل سے آج دفتر پہنچ پائی ہوں، اور میں حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ نبیہہ جب آپ وقت کو قلیل کر دیتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے، میں کیا کروں، جب آپ 7 دن کی بجائے 5 دن کر دیں گے، کچھ بھی کر لے، دیکھیے وہ آپ کی بات صحیح ہے، مگر جب میں نے احساس ذمہ داری ہی نہیں سمجھا تو گورنمنٹ کچھ بھی کرے گی۔ مگر نبیہہ ایک بات میں کہوں گا، 7 دن ایکسٹینڈڈ آورز میں شاپنگ لوگوں کو کرنے دیجئے، کانسنٹریٹ کر دیں، تو کانسنٹریشن کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ لوگ آئیں گے۔ مجھے ابھی تک یہ منطق سمجھ نہیں آئی، مجھے بہت ساری منطق سمجھ نہیں آتی۔ اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ وہ افطاری کے بعد رات 12 بجے تک کر سکتے ہیں تو یہ رش نظر نہیں آئے گا، اس نہیں طرح نظر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ آپ ویسے بھی دیکھیں کنٹرول کرنا آسان ہوگا، ایک وقت میں کم لوگ ایک دکان میں ہوں گے، بازاروں گلیوں اور شاپنگ مالز میں کم لوگ ہوں گے، اور پھر آپ سیٹرڈے اور سنڈے کو بالکل دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ 7 دن کی بجائے چیزیں تنگ ہو کے 5 دن میں آ جاتی ہیں۔ بہر طور میرا یہ خیال ہے کہ NCOC میں مجھ سے بہت بڑے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ یقیناً نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر ابھی تک اس کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آیا۔ مگر آپ میں سے ہر ایک کو میری ایک درخواست ہے، مہربانی سے اگر آپ کی عمر اب 40 سے زیادہ ہے تو جا کے ویکسینیٹ کروائیے۔ خدا را ویکسینیشن از گوئنگ ٹو سیو یور لائف۔ کسی بھی وبا کے اندر اگر آپ کے پاس ایک ویکسین آ گئی ہے تو سمجھیے کہ ایک بہت بڑا دفاع کا میکنزم آ گیا ہے۔ اور ویکسین کے بارے میں نبیہہ ایسی سی باتیں روز سننے کو ملتی ہیں کہ بیان سے باہر ہے، اور میرا تو کبھی کبھی دل یہ کرتا ہے کہ اس ملک کو میں یہ بتا دوں کہ بس ویکسین لگاتے ہی آپ کی مردانہ طاقت بہت بڑھ جائے گی، پھر تو ایسے ویکسین پہ جھپٹیں گے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک تو آپ کو یہ جو فرسودہ خیالات ہیں نا لے دے کے بیٹھ گئے ہیں کہ بل گیٹس نے کوئی چپ ہمارے اندر ڈال دینا ہے۔ ارے میاں اگر تم میں کوئی خوبی ہوتی نا تو پھر یہ بات کرتے اچھا بھی لگتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور منطق یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ بھی ویکسینیشن لگوائیں گے تو اس کے بعد بخار ہوگا، بیمار ہوں گے، اور بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوگا تو بھی نہیں لگانا۔ آپ اس بخار سے ڈر رہے ہیں، اور جو اس کے بعد خدا نہ خواستہ نہ لگوانے سے جو بخار ہو سکتا ہے خدا را اس سے ڈریں۔ اور بخار کتنوں کو ہوتا ہے خواتین حضرات؟ میری عمر چند ماہ تھی جبکہ میری خالہ جو کہ پروفیسر آف پریونٹیو اینڈ سوشل پیڈیاٹرکس تھیں، پروفیسر فہمیدہ جلیل، وہ پائنیئر تھیں EPI کی۔ EPI وہ پروگرام ہے جس کا نام ہے ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن، جس کے تحت بچپن کی 6 مہلک بیماریوں کی ویکسین لگتی تھی۔ اس زمانے میں ایک ویکسین لگا کرتی تھی جس کا نام تھا TAB، ٹائیفائڈ A اینڈ B۔ اس کو لگوانے کے بعد ہلکا سا بخار چڑھتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو چرخی والا ٹیکا ہوتا تھا جو کہ چیچک کے خلاف ہوتا تھا، تب بھی تو کچھ نہ کچھ طبیعت خراب ہوتی تھی۔ مگر آج کے آپ کے بچوں کے اندر کبھی سنا ہے کہ اس کو کالی کھانسی ہو گئی، اس کو ٹیٹنس ہو گیا، اس کو میزلز اور ممپس اور روبیلا ہو گیا؟ یہ ساری ویکسینیشنز بہت ہی ارلی سٹیجز میں لگ جاتی ہیں بچوں کو۔ خواتین حضرات میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ناؤ کرونا از ہٹنگ ویری کلوز ٹو ہوم۔ ہمارا کوئی اب ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ نہ پہنچا ہو، کسی کا عزیز رشتہ دار اس سے نہ افیکٹ ہو۔ یقین کیجئے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، آپ کو جو ٹیلی ویژن میں نیوز ریل دکھائی جاتی ہے وہ بہت پرانی ہے، وہ کرونا کے ابتدائی دنوں کی ہے، 2020 کے ابتدا کی۔ میں نے کل اپنے ہسپتال سے نیوز ریل بنا کے لانی ہے، وہ صرف اس لیے کہ آپ کو میں تھوڑا بہت بتا سکوں۔ ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ حالات پتہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ کہ کتنے لوگ ہم میں سے کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں جن کو کھانسی بخار ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز پر ایڈمٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں وائرس ہو سکتا ہے یا ہم اس کا ٹیسٹ کروائیں۔ کتنی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ نبیہہ میں ایسی سی باتیں روز سنتا ہوں، میں کسی بی بی کو، بوڑھی عورت کو کہتا ہوں کہ بی بی اپنا خیال کرو، ماسک پہن لو، ویکسین لگوا لو، نہیں
जेड़ी रात कब्र चानी और कब्र से आनी। एक तो मैं इस जुमले से बड़ी तंग आ मैं चुकी हूँ। इसके अलावा 10 और जुमले भी बोल सकता हूँ यहाँ पे। वाकई जो रात कब्र में आनी वो कब्र में ही आनी है, तो खुदकुशी तो ना कीजिए ना, अल्लाह की मर्जी के ऊपर अपनी मर्जी ना हावी कीजिए कि मैंने अपनी एहतियात नहीं करनी। इलाज सुन्नत है, हम बाकी तमाम सुन्नतों की बात करते हैं, इलाज को क्यों नहीं सुन्नत समझते। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताऊं कि सरकार दो आलम एक दफ़ा एक सहाबी के यहाँ गए जिनको दिल की बीमारी थी, और जब उनके यहाँ इयादत के लिए गए तो उन्होंने अपना दस्ते शफकत, जो कि दस्ते शिफा और दस्ते रहमत भी था, उनके सीने पे रखा। उसके बाद तो कोई दिल की या सीने की बीमारी किसी को ना हो, मगर जाते हुए कहने लगे कि मियाँ मैं तुमसे मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए दुआ भी की है, मगर वो यहूदी जो हकीम है वो बड़ा हाजिक हकीम है और दिल की बीमारियों के इलाज को बखूबी जानता है, तो बेहतर है कि तुम उससे राब्ता करके इलाज करवाओ। ये है असल रूह इस्लाम की, और खुदा भी ये चाहता है कि आप अपनी जान जो कि एक नेमत है, जिंदगी और उसको यूं जाया नहीं आप कर सकते, वरना तो फिर बीच सड़क के जाके ट्रक के आगे आप फिर खड़े हो जाएंगे, खुदा फिर बचा लेगा। ऐसा नहीं होता, आपको एहतियात जो है वो लाजमी करना पड़ती है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, और अब जरा आगे कैसे बढ़े। मेरे तो पैरों में जंजीरें पड़ गई हैं बहुत उम्दा भूनते हुए गार्लिक की, और वो हमेशा की तरह मुझे अपने किचन से आ रही हैं। और सैयदा हुमा किरमानी ने तो आते ही मेरे ख्याल में किसी बहुत उम्दा कश्मीर ऑयल के अंदर गार्लिक को सौते करना शुरू कर दिया। वो क्या बन रहा है आज? मैं मीट बॉल मंचूरियन बना रही हूँ, गार्लिक राइस बन रहे हैं साथ, लेकिन उसके साथ एक मैं रोल्स बना रही हूँ, ब्रेड रोल्स। और अच्छा, ब्रेड रोल्स हमेशा, वो मैं आपसे बल्कि बात भी कर रही थी कि हमेशा जो क्रैक उसमें आ जाता है या ट्रिकी होता है, तो वो टिप भी आज लाजमी लेंगे कि किस तरह से ब्रेड जो है रोल करते हुए आपकी वो टूटे ना, वो भी ज़रूर बताएंगे। और उसकी फिलिंग भी बताएंगे कि किस तरह आप चीज़ी और क्रीमी उसे बना सकते हैं, और आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आपके मेहमान आए आप निकालें, उसको सिर्फ फ्राई करें। और अच्छा, आसान उर्दू के अंदर आज हुमा क्या बना रही हैं? मंचूरियन कोफ्ते। ये बात है ना? बिल्कुल। देखिए आजकल हमारी शेफ्स जो हैं हर चीज़ को एक ऐसा एलेबरेट नाम दे देती हैं कि उसके बाद हम घबरा जाते हैं कि कहें तो क्या कहें, वाकई बिल्कुल। मगर हैं मंचूरियन कोफ्ते ही, और आज हम इफ्तारी पे ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे थे। कल हुमा ने अलबत्ता हमारे कहने पे हलीम बनाई, जिसका एक कतरा नहीं बचा। बस थोड़ी बनाती हो, थोड़ी सी कंजूस हो, मैंने देखा, जरा समझ आई। जब हलीम बने ना तो कम से कम देग बननी चाहिए। कुछ चीज़ों के साथ एसोसिएशन ही ऐसी है कि वो ज़्यादा बने तो अच्छी लगती हैं। क्यों हुमा? बेशक ऐसे ही है, और बरकत भी हो जाती है उनमें। लेकिन माशाल्लाह हम खाने वाले भी काफ़ी होते हैं, और बुला भी लेते हैं इफ्तारी के वक्त सबको कि आ जाइए। बुलाते भी हैं, हमारे अपने मेहमान होते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, हमारा पक्का हुआ जो तुम्हारे यहाँ पकता है वो स्मगल भी कई जगह होता है हमारे इदारे के अंदर। भाई अपनी अपनी किस्मत का रिस्क लोग खाते हैं। ख्वातीन हुज़ात, हमारे साथ आज की नशियात में बहुत अच्छे नातख़्वां भी शामिल हैं और बहुत अच्छे मेहमान भी शामिल हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यकीनन उनसे आपकी मुलाकात होगी, और मुलाकात के अलावा उनकी बातें आपको सुनने के मिलेंगी। क्यों नबिया, ऐसा ही है? मुलाकात बल्कि करवा देते हैं मेरे ख्याल बिल्कुल से। करवा दीजिए, और क्या। बड़ी प्यारी मेहमान आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होने जा रही हैं, और भाई अब शिकवा इनसे ये है कि काफ़ी देर से ये नज़र नहीं आ रही हैं, और उसकी वजह ये है कि एक छोटा सा जो है ना घर में इनका जो एक नन्हा मेहमान तो नहीं है, इनका जो बेटा है उन्होंने इनको मसरूफ अप कर लिया है। उससे पहले मॉडलिंग, एक्टिंग और बहुत सारे काम करते हुए हमें जनाब हिना मलिक नजर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम हिना, आज टाइम मिल गया आपको नन्हे आहिल से? जी जी, हमेशा रियो के लिए तो हमेशा टाइम है, और ये मेरा सेकंड होम है, और माशाल्लाह हमेशा जब भी आती हूँ यहाँ पे पॉजिटिव ही एनर्जी मिलती है। और माशाल्लाह डॉक्टर साहब की बातें सुन के दिल करता है बंदा सुनता ही रहे। और मैं पहले भी डॉक्टर साहब आते ही मेरा दिल जीत लिया है, बड़ी अकलमंद लड़की है। और क्या बात सिर्फ ये है ना, ये है कि मसला मेरा ये है कि मैंने कभी मॉर्निंग शो किया नहीं। आप लोग हैं मुस्तकिल मेहमान होते हैं नबीहा के मॉर्निंग शो के। डॉक्टर साहब, मैंने जब आपके साथ भी शोज किए हैं दूसरे चैनल्स पे, पर मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है। और इनकी जो माशाल्लाह उर्दू में जो ग्रामर और तलफ़्फ़ुज़ है ना, वो अक्सर मतलब कि अम्मी से और उनसे सुनने को मिलते हैं, वो हमें पता भी नहीं होता। समटाइम ऐसा भी होता है कि मैंने डॉक्टर साहब से एक दो दफ़ा पूछा भी है कि ये जो आपने बोला था ये इसका मतलब क्या है? बेटा इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, लोग आजकल मुझ पे बहुत तनकीद कर रहे हैं। मैं बाहर जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि इस कदर सरप उर्दू बोलते हैं। हमारा 5 बजे के बाद जो सेगमेंट होता है उस पर आई एम श्योर भी बहुत ज्यादा, और लोग कहते हैं कि आप बहुत उर्दू बहुत। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ, उर्दू जिस मुल्क की कौमी जुबान है मैं उसका रहने वाला हूँ, और मेरे अलावा सही उर्दू और कहीं नहीं बोली जाती। अब मुझे बताइए, मंगोलिया के अंदर तो लोग उर्दू नहीं बोलेंगे। वाकई हम इस बात से एग्री करते हैं, वाकई जितनी सही उर्दू ये बोलते हैं ना, ऐसी उर्दू कहीं नहीं बोली जाती। बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन एक कोशिश जरूर होनी चाहिए। माशाल्लाह रुहानी, वो मतलब एक होता है ना कि रुहानी के साथ साथ बोलते हैं, वो हमसे भी नहीं होता भाई। हम बोलते बोलते कुछ ना कुछ दूसरी किसी लैंग्वेज को मिक्स करके वो आगे। मैं एक बात बताऊँ आपको, जबान शनाख्त है।
और जो आपका लहजा है वो दरअसल बताता है कि आप किस किस्म के इंसान और हैं। जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का भी रंग थोड़ा सा बिल्कुल इलाकायत बड़ी उम्दा चीज है, मगर बात वही है कि बहुत हसीन लड़की है, अगर वो बात करने के लिए मुंह खोले तो कई दफा बंदा कहता है हाय मुंह ना खोल दी तो किन्ना चंगा सी किड्डी सोनी पी लग रही, मुंह खोल के सारा काम खराब कर देता है। ये बात है वाकई मेरे ख्याल में है। और ये इस बात को ना इम्प्रूव करना भी चाहिए। हम लोग जब जाते हैं पाकिस्तान से बाहर अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो फिर उसका ये मतलब होता है कि आप एक मुकम्मल पैकेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत देख रहे हो, आपने बहुत अच्छा ड्रेसअप हुए हो, लेकिन जब आप मुंह खोलो तो फिर अगला कहे कि यार ये खामोशी बैठा रहता है इंसान, ये बैठी रहती तो अच्छा रहता, अच्छा लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समटाइम मॉडल्स के लिए भी ये बात बहुत बोली जाती है कि आप लोग जो आप लोग क्रिटिसाइज किया जाता है। जब मैंने जवाद बशीर सर ड्रामा मैंने साइन किया था तो मेरा पहला ड्रामा उनके साथ था, तो वो मुझे ये कहते थे कि है ना तुम तो माशाल्लाह मतलब कि अच्छे से सीखी और अच्छे से मतलब कि वो जुमले भी बोलना शुरू कर दिए, वरना मॉडल्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है जब भी हम उन्हें साइन करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि उर्दू ना मतलब कि सही से नहीं बोली जाती। हालांकि मेरे पेरेंट्स भी कश्मीरी हैं, मेरे उसमें लहजे में भी आता है, अरबिक टच भी आता है और वो भी आता है, लेकिन ये है कि आप कोई भी काम करना चाहते हो आप देखते रहिए और फैसला आप कीजिएगा कि हमारी बच्ची हिना मलिक कितना उम्दा बोलती है और आम मॉडल्स के मुकाबले में कितनी फ्लुएंट भी है। अब थोड़ा सा वक्फा है, वक्फे के दौरान आप थोड़े मोटे काम करके वापस दोबारा अपने टेलीविजन पे आ जाएं और खबरदार किसी ने अगर रिमोट कंट्रोल को हाथ लगा के कोई चैनल बदलने की कोशिश की, ये मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, मुझे तो कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में डॉक्टर साहब और मैं आपसे बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर आप बाजार भी जा रही हैं, बहुत जरूरत के तहत आपको कहीं भी जाना पड़े तो बहुत ही आसान सा SOP है। मेरे ख्याल से कुछ इससे आसान हो नहीं सकता। एक तो ये कि आप मास्क पहने, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, और दूसरा ये है कि डिटॉल का हैंड सोप या हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने बैग में रखें। छोटा छोटा पाउच रख लें या किसी भी सूरत में किसी भी फॉर्म में, लेकिन रखें जरूर, क्योंकि डेटॉल वो वाहिद साबुन है जो हर तरह के जरासीम को जो कि आपके हाथ पे मौजूद होते हैं उनका मुकम्मल तौर पर सफाया कर देता है और आपको कोविड-19 के वायरस से भी महफूज रखता है। 20 सेकंड तक आपने अपने हाथ अच्छे तरह से डेटॉल के साबुन से आपने धोने हैं और फिर आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके प्यारे तमाम लोग हैं महफूज और सेफ। और बड़ी अच्छी जनाब खुशबू आ रही है किचन में। हुमा सॉस तैयार कर रही हैं। जी हुमा, जो है मंचूरियन उसकी सॉस तैयार हो रही है और बिल्कुल वैसे ही जिस तरह चिकन मंचूरियन की होती है। गार्लिक जो है वो हमने ऑयल के अंदर थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था। ग्रीन चिली चॉप ली थी जी मैंने, वो साथ में थोड़ी सी उसको लाइट सा कुक किया। उसके साथ चिली पेस्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि चिली जो ड्राई चिली रेड वाली होती है उसको लीजिए, उसको बॉयल कर लीजिए थोड़े से सिरके के साथ और उसको ब्लेंड कर लें, वो इस्तेमाल करनी है। सारे चाइनीज फूड्स में वो इस्तेमाल होती है। उसके साथ जो है साथ में केचप मैंने इस्तेमाल किया है, चिकन स्टॉक इस्तेमाल कीजिए, सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी चीनी डालेंगे हम साथ में। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वो नहीं है बहुत थिक या बिल्कुल नहीं। अभी मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करूंगी। एक बात बताऊं, मुझे किसी ने बताया था कुछ दिन पहले हमारी ट्रांसमिशन में कि असल टिप ये है कि पिसा हुआ और बना हुआ गार्लिक पेस्ट ना इस्तेमाल कीजिए। ताजा गार्लिक लीजिए, उसको बारीक बारीक काटिए और फिर उसको सौते करें ऑयल के अंदर। ये याद है, ये टिप मुझे किसने बताया था? एक लड़की है सईदा हुमा किरमानी, जो मुझे बताती है, मैं यूं गिरा बांध के बांध लेता हूँ। अच्छा, ये अरे कोफ्तों जैसा का स्टूडेंट साइज कहाँ मिलेगा तुम्हें हुमा, तुम ऐसे ही वक्त जाया करिए इधर उधर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपने कोफ्तों का साइज देखा है कितने? कोफ्तों का साइज बड़ा एडिबल है, ये बिल्कुल बाइट साइज कोफ्ते हैं जो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, कोफ्ता एक ऐसी चीज है हुमा जो कोई दुनिया का कल्चर ऐसा नहीं है कि जिसमें ना मौजूद हो। बिल्कुल आप यकीन कीजिए, मैं वियतनाम में कोफ्ते खा चुका हूँ, थाईलैंड में खा चुका हूँ, चाइना में तो बहुत कोफ्ते होते हैं, और थाईलैंड में तो स्पेशली स्कीवर के ऊपर लगा के भाई वाह वाह क्या उम्दा आप कहते हैं। और वो अच्छा, उनमें से बहुत सारे फिश के होते हैं या सी फूड के होते हैं? बिल्कुल सी फूड के ज्यादा होते हैं और वो खुशबू भी उनकी इतनी प्यारी आ रही होती है। और स्ट्रीट फूड जिस तरह हमारे यहाँ जो है छल्ली भून के दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जो है ट्रॉली पे वो खड़े होते हैं। और बिल्कुल डॉक्टर साहब जो खाने की आप हुमा की तारीफ करते हैं डेली की इतना लजीज होता है इफ्तार के बाद, आप उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कश्मीर बनास्पति और कश्मीर के मतलब दो। और आप देख सकते हैं कि हम कश्मीर ऑयल में बना हुआ खाना खाने के बाद हमने बिल्कुल अपना वेट भी गेन नहीं किया है, बल्कि हम और ये तो तोल के पता चलेगा वाकई। और क्या, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, और मीट बॉल्स की भी मैं रेसिपी बता दूं कि किस तरह से आपने उसको नरम बनाना है और बाइंडिंग उसकी अच्छी करनी है। कीमा मैंने लिया था और कीमे को आपने जो है किसी छानने में डाल के रख देना है। आप चूंकि हम
नॉर्मली बैग्स के अंदर लेकर आते हैं, शॉपिंग बैग्स के अंदर जो भी हमारे यहाँ मटेरियल आता है, इवन ट्रे के अंदर भी जो मॉल्स के अंदर से हम ग्रोसरी करके लाते हैं, कीमा लाते हैं, उसके ऊपर भी एक रैपर शीट होती है। उस रैपर की वजह से थोड़ा बहुत जो है ना कीमे के अंदर पानी आ जाता है। आपने करना ये है कि स्ट्रेनर के अंदर डाल के उसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, नीचे उसके कोई बाउल रख लीजिए ताकि उसका एक्सेसिव ब्लड या पानी जो भी है वो स्टेन हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, प्याज लेना है, उसको बारीक चॉप कर लेना है और उसको उसका पानी निचोड़ लेना है। ठीक है, ठीक है, मलमल के कपड़े में डाल के अच्छे से उसका पानी निकाल लीजिए। अच्छा, मैं हुमा यहाँ पे एक बात बताऊं, जब पानी आप अच्छी तरह निचोड़ लें और प्याज बिल्कुल खुश्क हो गया है, फिर जाके नबिया ये तुम्हारे लिए जी। जाके एकदम से पीछे से अपने मियाँ की आंखों पे हाथ रख के कहें गेस हु। ये बहुत अच्छी टिप थी। अच्छा जी, आपने करना ये कि उस प्याज को थोड़ा सा मैंने जो है लाइट सा बटर के अंदर लाइट सा कुक कर लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने उसका जो है मिक्सचर कीमे के साथ मिक्स किया है। सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर उसके बाद आपने ऐड करना है और मीट हिना, बॉल्स बना आप लेंगे। ऐसा क्या घर में अब तक स्पेशल बनाया है जिससे भाई वाह वाह हो गई हो? बस हिना ने जो बना लिया देख ही रहे हो। हिना ने बेवकूफ बनाया है, और जब बेवकूफ बना ले तो फिर वाह वाह ही होती है। नहीं, बाकी बेवकूफ हज़रात, नहीं इस वक्त बनाया। हिना के साथ साथ बेवकूफ हमारे बिल्कुल साथ नहीं एक बनाया। और मेहमान भी मौजूद हैं जिनका नाम जनाब उमर शामी है। मैंने उमर शामी से पूछा कि भाई आपका तारुफ करवाना है तो कैसे करवाएं, तो कहने लगे कि एडवोकेट इंजीनियर उमर शामी। मैंने कहा मियाँ फिर अगर ये मुकाबला है तो फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है कि नहीं। डॉक्टर, सर्जन, राइटर, पोएट, डिजाइनर, प्रेजेंटर, कंपेयर, डॉक्टर। वंडरफुल। भाई बड़ी अच्छी बात है। ये फरमाइए क्या करते हैं? शामी फाउंडेशन को आप देखते हैं, व्हाट डज शामी फाउंडेशन डू? बेसिकली मैं शामी ग्रुप ऑफ कंपनीज का CEO हूँ। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सोलर कंपनी है, एंड फार्मिंग के अंदर भी हम कंट्रोल शेड्स एंड पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं बेसिकली। तो इसमें मुख्तलिफ तरह से हम पाकिस्तान की कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, बट वी आर बिजनेसमैन बेसिकली। अच्छा, ये बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की और उसके अलावा लॉ किया, दोनों बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। हाउ डू दे हेल्प ईच अदर? इंजीनियरिंग वाज नॉट रियली माय पैशन। ठीक है। मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि आई शुड बिकम एन And what इंजीनियर। sort of engineer did you become? Electronics, civil, I'm actually mechanical? a mechanical engineer, but my specialization है fabrication and design में, Excellent. and that is being done from Australia. So मेरे father की शदीद ख्वाहिश थी I should become an engineer. और फिर when I came back to Pakistan and I had to handle all these businesses, तो फिर मुझे ये हुआ कि इंजीनियरिंग मैंने फादर के डर से कर ली और लॉ मैंने लोगों के डर से कर अच्छा लिया। भाई, ये बात हम उमूमन लोग किस बात पे कहते हैं, पहली शादी मैंने माँ बाप की मर्जी से की और दूसरी शादी अपनी मर्जी से की। और अच्छा, एनीवे, ये फरमाइए ऑस्ट्रेलिया में आपने तालीम हासिल की इंजीनियरिंग की, विच पर्टिकुलर टाउन और सिटी इन ऑस्ट्रेलिया? मेलबर्न। मेलबर्न। अच्छा, आई नो ऑस्ट्रेलिया वेरी वेल। मेरे भाई भी वहाँ पर होते I हैं। resided there for Gold Coast 13 में years. आजकल। अच्छा अच्छा। से कर रहे हैं। मैं 13 से 14 साल वहाँ रहा तो हूँ। मैं काफी अर्सा उनके पास जा जाके वहाँ पर रहती हूँ, इसलिए जब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई तो ऐसे लगा जैसे होम टाउन से कोई उठ के आ गया। बिल्कुल, ये Very, affordable। it's a wonderful place to be. It's a lovely place. lovely It's so place, beautiful and sunny and all that. It The is. only thing that I have against Australians is their accent. उफ, जो जिस तरह वो अंग्रेजी बोलते हैं ना, वो एक इरिटेटिंग चीज होती है। तो Exactly. इलाकायत की हम ही बात कर रहे थे, तलफ़ुज़ के अंदर। तलफ़ुज़ के। अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं, नबीहा भी जानती होंगी, लेकिन जब मैं बहुत अरसा इंग्लैंड में रहा, हम समझते हैं कि हर बंदा इंग्लैंड में तो क्वींस इंग्लिश बोलता होगा, तो BBC इंग्लिश बोलता, कतन ऐसी कोई ऐसा बात कुछ नहीं। नहीं। इतनी बुरी अंग्रेजी लोग ऐसे बोलते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ चले जगहों जाओ, पे। ऐसे लगता है कि भाई पाकिस्तान में ही फिर रहे हो। उससे भी नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से पसमानदा गांव में आ गए और अजीब हो गई। अच्छा, मुझे बड़ा इरिटेट करना कि भाई ये क्या लिवरपूल वालों को कितना बुरा एक्सेंट है, डसवीजियन एक्सेंट कितना बुरा है, मिडलैंड्स का एक्सेंट कितना बुरा है, ये है वो है, कॉकनी कितने बुरा बोलते हैं। तो मेरे एक अंग्रेज दोस्त थे, उन्होंने कहा कि उमर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं कहते कि दुआ करूंगा। अच्छा। मैंने कहा अच्छा क्या दुआ करेंगे? कहने लगे कि जो तुम्हें हमारा एक्सेंट बुरा लगता है, अल्लाह करे तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड उस एक्सेंट की हो जाए। भाई वो वाकई फिर ये आजमाया हुआ नुस्खा है अच्छा, वाह। कि भाई जो लहजा यार मन का होता है वो कानों को और दिल को दोनों को अच्छा लुभा लगता है। जाता है जी। बिल्कुल। तो मेरा ऐसे ख्याल है है। मेरा ऑस्ट्रेलिया में सब मानना ना हो सका, जिसकी वजह से भी ये मुझे रीजन ऑस्ट्रेलियन है। मैं एक्सेंट आपको बुरा थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया क्योंकि मल्टी नेशनल कल्चर है, so there are plenty of different nationalities living Absolutely, there. I तो know that. वो मिक्स ऑफ इंग्लिश जो है ना वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो वी हैव गॉट डिफरेंट स्लैंग्स देयर और डिफरेंट तरह की Absolutely. थोड़ा सा, तो वो मुख्तलिफ कल्चर्स के इकट्ठा होने से भी एक नई इंग्लिश बन अच्छा गई। उमर, आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जी। किस तरह की चीजें कंस्ट्रक्ट करती हैं? ह्यूज बिल्डिंग्स या घर? जी हाँ जी हाँ जी। We do commercial buildings and residential housing as well, but in bulk, like 300 houses at a time, 200 houses at a अच्छा, time. बिल्कुल। और अभी रिसेंटली हम लोग काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग्स में। उमर ये बताइए कि
जो आपके यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स और बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ ऑफिसेस खड़े हुए हैं, इतने बदसूरत क्यों हैं, इतने बदसूरत क्यों हैं, मुझे बताइए। हमारे एस्थेटिक्स कहाँ चले जाते हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन कहाँ चली जाती है, हमारे वेदर के साथ उनका मुमासलत कहाँ चली जाती है। माल रोड जाके देखिए, अंग्रेज ने बनाया, दिल खुश हो जाता है। ये बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया है। अब से पहले मेरी मुझे सारी बातें जबरदस्त होती हैं, सवाल की क्या बात है? but this is one of the best ones I should say, क्योंकि अभी तक मुझसे किसी ने ये जो डिजाइन है इसके ऊपर बात नहीं की, एलिवेशन के ऊपर बात नहीं की आज तक किसी ने। लोग स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं लेकिन एलिवेशंस पे बात नहीं करते। वेरी सून शॉर्टली ड्यू टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी इन पॉलिसीज की वजह से आप बहुत शॉर्टली देखेंगे कि पाकिस्तान की जो बिग सिटीज हैं दे विल बी कम्पीटिंग इन द वर्ल्ड कंपैरेटिवली अपनी बिल्डिंग्स में। अभी हम जब इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, आप इवन आप अपने सराउंडिंग कंट्रीज में भी जाएं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, तो क्लोज है हमारे से, तो वहाँ पे भी हम जाके बिल्डिंग्स को ऐसे नीचे से ऊपर तक देखते हैं, तो वो माइंड ब्लोइंग लगती हैं। इस वक्त मैं आपको ये न्यूज़ देता हूँ कि आपके पाकिस्तान लाहौर के अंदर इस वक्त 125 नई बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स ऑन गोइंग है, और इससे एक बहुत बड़ा नंबर है जो पीछे से आ रहा है। और हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त, उनकी पॉलिसीज जो हैं दे आर रियली गिविंग अस अ गुड टाइम। उमर, एक बात कहूँ आपको मैं, अभी आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जिक्र किया, अल्लाह करे कि जो कुछ वो कहते हैं वो इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में हो जाए, मगर अक्सर मेरा दिल करता है इन तमाम वादों को सुनने के बाद कि मतलब कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वाकई यकीन कीजिए, अल्लाह करे हम जीते। खुशगुमा होना चाहिए, अच्छा, अच्छे की उम्मीद रखना। मैं खुशगुमान जरूर हूँ, बेवकूफ नहीं, समझ आई। अभी तक की कारकर्दगी देखने के बाद मुझे कुछ ना कुछ सोचना है कि कल को क्या होगा, मगर फिर भी खुश उम्मीद रहिए। क्या पता ऐसी बिल्डिंग्स बन जाए जिनकी एलिवेशन देख के हम यूं से ऊपर से देखा करें और लान तेना डाला करें उन बिल्डिंग्स डॉक्टर साहब, एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा। एक ब्रेक आ गई है, अगली ब्रेक में आप हमारे साथ हैं। उमर, तुम्हें अंदाजा नहीं कि ब्रॉडकास्टिंग भी कितनी मुश्किल चीज है, 3 चीजें सुननी पड़ती हैं एक साथ। हमारे साथ रहिए, उमर की बातें भी होंगी, उमर की बातें भी होंगी, और हिना की और नबीहा की बातें भी होंगी, और कहीं कहीं अगर मेरा दिल किया तो हुमा किरमानी की बातें भी होंगी। हमारे साथ भी वेलकम बैक जनाब। गुफ्तगू हो रही है, ब्रेक से पहले बड़ी टेक्निकल और प्रोफेशनल बातें हो रही थी, जरा जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। मैं बिल्कुल बात कर रहा था, लेकिन ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा कि आज नबीहा ने एक टंटा ही मुका दिया, एक झगड़ा ही खत्म कर दिया है। खुश आमदीद और खुश आमदेद का उन्हें वेलकम बैक करना शुरू कर दिया। कितनी आसानी का रास्ता निकाला है। मैं उस वक्त सोच रहा था कि नबीहा का मूड में देख लेता हूँ, जिस दिन मुझसे नाराज होती है उस दिन खुश आमदीद, जिस दिन थोड़ा सा बेहतर है उस दिन खुश आमदेद। हरगिज़ ऐसा नहीं है, ये हो जाता है बस। अच्छा, मैं हिना से, क्योंकि यहाँ पे बड़ी टेक्निकल बातें हो रही है, तो यहाँ पे जरा हम घरेलू खवातीन जरा बातें करते हैं। अच्छा, बिल्कुल घरेलू नहीं है, वो भी वर्किंग वुमन है, ये भी वर्किंग वुमन है, ऐसी क्या बात है। और ये घर जाके हम सब बिल्कुल घरेलू हो जाते हैं। तुम्हें क्या पता मर्दों का घर में क्या हाल होता है, चुप कर जाओ बस, और क्या, सब हम बड़े घरेलू मर्द हैं बिल्कुल। एनीवे, आप सवाल पूछिए। हाँ हिना, मुझे ये बताओ कि अक्सर जो है ना मम्मीज को बड़ा वो रहता है, गिल्ट फैक्टर रहता है कि अल्लाह घर में बच्चे को छोड़ दिया है तो मियाँ के पास या तो अम्मा के पास, जब काम पे स्पेशली होते हैं तो उससे कैसे टैकल करती हो? दिल उधर ही होता है, दिमाग भी उधर ही होता है। मैं बार बार ब्रेक में यही टाइम पूछ रही, डॉक्टर साहब से पूछ रही थी, मैंने कहा कब टाइम खत्म होगा और मैं जाऊँगी घर पे। और अभी आयल माशाल्लाह है भी बहुत ज़्यादा छोटा है ना, तो अभी 8वें महीने में जा रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए मैं इधर उधर हो जाती हूँ, तो पता नहीं वो कैसे रह लेता है, पर मैं नहीं रह पाती। मुझे ऐसा होता है कि आदत हो जाती है ना। किसके पास छोड़ के आती? अभी माशाल्लाह वो अपनी दादों के पास है। और अच्छा, मैं एक बात कहूँ, वर्किंग मॉम की बड़ी नहीं, वो सही बात है। वैसे डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि लोग ना अक्सर आप देखते हैं ना सास बहू के ड्रामे और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है, और हमारे ड्रामे भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा नबिया को तो पता है इस बात का। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। भाई बहुत अच्छी, मैं एग्जैक्टली यही बात कहने लगा था कि जो दादियाँ जिस घर में होती हैं, आप यकीन करें कि उनसे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। और मेरी वालिदा एक बात कहा करती थी मेरे बेटे के मुतालिक, वो कहती थी, उमर ये मत भूलना कि असल से सूद प्यारा होता है, औलाद है। बिल्कुल ये। अच्छा, ये बताइए उमर की तो दोनों बीबियां जो है ना, इन्होंने वो यहाँ पे जी सिने अवार्ड शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, ये जो भी वो जी ड्रामे शामे होते हैं हमारे यहाँ। आप ये फरमाइए कि कंस्ट्रक्शन के अलावा आपका अपना और पैशन क्या है? आपने कहा एक काम आपने चूंकि अब पेरेंट्स की तरफ से किया और एक आपने जी खुद से और तो तीसरा काम भी कोई उसमें हुआ? जी बेसिकली जो मैं बिजनेस रन करता हूँ उसमें हम लोग 3 मेजर काम है जो करते हैं। इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, इसके अलावा हम लोग सोलर का काम करते हैं, और फार्मिंग में फार्मिंग में जी पोल्ट्री फार्मिंग। जी हाँ जी। अच्छा, तो ये तीनों बिजनेस को मैं देखता हूँ, CEO हूँ मैं इसका। सोलर का काम है सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन इसमें अगर आप मुझसे पैशन पूछें काम का, तो वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन
अफेक्शन ही है, दिल उसमें दिल उसमें एक्चुअली इसमें सबसे जो मज़ेदार चीज़ है व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट मनी इन पीपल तो वो इट गिव्स यू सच अ प्लेजेंट फीलिंग Absolutely. एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर जब आप उन लोगों को डिफरेंट तरीकों से छोटी छोटी उनकी खुशियाँ और ख्वाहिशात बांट रहे होते हैं ना, यू जस्ट फील इन कि यार ये आप किसी को अपना बना रहे हैं। इससे खूबसूरत Every एहसास single बाकी moment. वैसे कोई तो अच्छा ये बताइए कि आपकी सेहत देखकर अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी कायम रखे। मुझे लगता है कि सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग नहीं करते बल्कि जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो खाते भी होंगे। जी, absolutely. किस किस्म का खाना पसंद है? मैं बेसिकली बाय बर्थ हम लाहौरी फैमिली हैं तो खाने में ज़रा चटखोरे खाने जो हाँ ज़रा बताइए ना कौन सा भी बता सकते हैं, कितने चटखोरे हैं? मेरी जो फेवरेट है वो तो वैसे बिरयानी जो ज़्यादा घर की बिरयानी? जी घर की बिरयानी। वैसे डॉक्टर साहब बिरयानी खाने एक- की बात हो रही है जी। तो आप लगे आते हैं काफ़ी दिनों बाद अब हम लोगों की मुलाकात हो रही है तो आप जब भी खाने बनाते हैं और स्पेशली इनके बहुत ज़्यादा खाने में देखती रहती हूँ फेसबुक पे जो भी बनाते हैं आते हैं और बहुत ज़्यादा मेहमान भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है वाकई बरकत बहुत रहती आते है हैं। तो पाए जो आपके हर खाने में होते हैं उसका क्या राज भाई है? किस्सा ये कौन है कि बनाता मैं है, कौन है समझता हूँ वो? कि मैं देखिए हड्डियों का डॉक्टर हूँ, जोड़ों का इलाज करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने पाए खाए होते हैं उनके जोड़ बहुत देर तक चलते रहते हैं। और वैसे भी पाए एक बड़ा असली किस्म का लाहौरी खाना है, बिरयानी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर पाए अच्छे बनाने हो तो सबसे पहले अच्छे पाए खरीदें। जिस बकरे के गदराए मोटे मोटे पाए होंगे उसी के बहुत उम्दा पकेंगे। ये लेना सबसे पहली चीज़ जो है वो इंग्रेडिएंट्स की चॉइस है। मसाले डाल डाल के मर जाएं अगर आपका बेसिक इंग्रेडिएंट ठीक नहीं, कुछ नहीं हो सकता। 8 पाए एक आदमी के लिए काफ़ी होते हैं, आप यकीन मुझे कीजिए। लग रहा है मैं कितनी बदज़ौक़ हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में पाए नहीं खाए। हाँ, मुझे पता है, आप भी खाती हैं। बात तो एक बात ब्रेक आ गई, याद ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं ब्रेक अभी नहीं आई। लेकिन हम उमर से पूछे थे, उमर बिरयानी तो लाहौर की डिश है ही नहीं है। बिरयानी कराची में कराची की है, हाँ, कराची जी, में मैं मैं चूँकि जाती है। व्हेन आई वाज अब्रॉड तो मैं बहुत सारे कराची और मुख्तलिफ लोगों के साथ दोस्तों के साथ रहा हूँ, मल्टी सिटीज़ लोगों के साथ और ऑब्वियसली डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ भी रहे, तो चॉइसेस बड़ी चेंज हो जाती हैं। लेकिन मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करूँगा। आप रीजनली भी जब जाते हैं ना तो फूड का टेस्ट इसीलिए चेंज होता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स बाइंग चेंज होते हैं। Absolutely. सर रीजनली आप यकीन कीजिए, रीजनली हर घर के किचन का टेस्ट अलग है। अलग है। और मैं जितना दुखी हूँ यहाँ पे लोगों की बिरयानी से, आप लोग ये समझते हैं कि चावलों के अंदर थोड़ा सा मसाला डाल दिया, टमाटर डाल दिया, यूं काट के वो डाल दिए लेमन के स्लाइसेस तो बिरयानी बन गई। अरे बिरयानी वो चीज़, और ये पुलाव बिरयानी जो शुरू की हुई है, ये कह जी चिकन पुलाव बिरयानी है, खुदा का वास्ता ये सब झूठ है, ये सब ढकोसला है। बिरयानी एक दिन आपको पकाना सिखाऊंगा। बिरयानी होती है, बिरयानी का कोरमा अलग हो, चावल अलग हो, यूं तह दरता है चलिए, हम वहाँ से बिरयानी की फरमाइश कर लेते हैं ना, जरा आने वाले जरूर दिनों में। कीजिए। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, अब हम उस मौके पे पहुंच रहे हैं कि जहाँ पे बिरयानी का जिक्र पीछे करके हमें शुक्रिया और खुदा हाफिज कहना है उमर का, और एक ब्रेक की तरफ जाना है। हम और कुछ करें या ना करें, ब्रेक पे बड़ी बाकायदगी से जाते हैं, मगर आप भी बड़े अच्छे लोग हैं, हर ब्रेक पे हमारे साथ रहते हैं और ये साथ यूं ही आगे चल रहा है। अब तो चंद दिन की बात रह गई।